everyone, welcome to Divya classes. So we have already covered the topic of how reflection works and how refraction works, and on the basis of 10th syllabus, which is related to physics chapter of light, reflection and refraction, I have uploaded already 2 videos regarding reflection and how reflection work and the laws of reflection. We have learned about the plane mirror in previous classes. I have uploaded almost 3 videos. 2 videos is related to the lectures and 1 video is related to the rules and the formulas that we can be used in the lecture in the syllabus. So first of all, थैंक यू सो मच, आपने उस वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया और हम आगे की वीडियो के लिए भी तैयार हैं. तो अगर आप आ ही चुके हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना. ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक. एंड देयर विल बी ऑलमोस्ट 3 lectures will be more of that. So we have covered the topic of reflection, how reflection works, the dual nature of light, and what is plane mirror, what is spherical mirrors like concave mirror and convex mirror. Then I have uploaded a video regarding the rules. There are certain rules. There are 4 rules to form an image of concave mirror, and there are 3 rules which I haven't tell you about it, but I will definitely cover the topic of that. So 4 rules are already covered. Let me recap the whole session. So first of all, we learn about the dual nature of light. You may visit the video, you may watch the complete video of that. And next, rules to obtain image. Then we have already learned like virtual image and real image. Mirrors. In mirrors we have learned about the plane mirror, and second one is spherical mirror. Spherical mirror are 2 types: concave shaped like that and convex shaped like that. The right portion will be polished because object always will be on left side. Okay, these are the topics that we have covered in last chapters, in last sessions, and right now I will complete this lecture on the basis of how concave and convex mirror form an image. So there are certain position of object where it can be placed behind beyond the mirror, and on the basis of their placed on the basis of their position the image can be formed. तो मैंने जो पहला रूल आपको समझाया था, चलो रूल्स के बारे में भी एक बार रिकैप कर ही देती हूँ. रूल्स नंबर 1 क्या था? कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्सिस आती है, ये होता है P, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर लाइन पैरेलल टू एक्सिस आई तो फोकस से जाएगी ही जाएगी. दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है, क्या कहता है? कहता तो है मैम, ठीक है ना. दूसरा रूल कहता है कि अगर फोकस पे पड़ी तो किधर जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस. अगर फोकस पे पड़ी तो पैरेलल टू एक्सिस. ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड. थर्ड रूल इज सेइंग this is focus, this is center of curvature. So if the ray is passing through, if the rays are passing through center of curvature, it will reflect back on the from the center of curvature. सेंटर से आएगी, सेंटर पे वापस जाएगी, लेकिन हाँ इनसे टकराना जरूरी है. तो इंसिडेंट भी यही हो गया और रिफ्लेक्टेड भी यही हो गई. लास्ट रूल नंबर 4, और ये चारों रूल अगर आपने पढ़ लिए ना तो आपको रे फॉर्मेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा, ठीक है ना. तो 4th रूल क्या कहता है? 4th रूल कहता है कि पोल पे पड़ी तो पोल से वापस. एंगल विल बी सेम एज इंसिडेंस, ठीक है ना. तो ये I हो जाएगा, ये R हो जाएगा.
This is very clear that if the incident rays are coming parallel to axis, it will reflect from the focus. Parallel आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस पे आई तो पैरेलल जाएगी. फोकस और पैरेलल का बहुत ही पुराना जन्म का रिश्ता है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं. थर्ड इज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस. फोर्थ रूल क्या कहता है, पोल पे पड़ी तो पोल से उतने ही एंगल पे वापस. तो ये 4 रूल हैं. इन चारों रूल को अपने दिमाग में फिट कर लो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म एनी इमेज. ठीक है ना. अब जहां पे 2 रे टकराएंगी, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे टकराएगी, वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज. जहां पे रिफ्लेक्टेड 2 रेज टकराएंगे आपस में, दैट पोजीशन विल बी कॉल्ड एज इमेज फॉर्मेशन पोजीशन, एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज इमेज फॉर्मेशन पॉइंट. वेरी इजी. सो फर्स्ट, इमेज formation, this is not first, this is topic. Image formation by which mirror? Concave mirror. Okay, हमेशा ध्यान रखो 2 रेज होंगी तभी इमेज बनेगी. 2 अगर रेज होंगी तो ही इमेज बनेगी, 2 रेज नहीं तो इमेज नहीं. ठीक है ना. तो 2 रेज को इंटरसेक्ट कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट जो आपका है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. जैसा कि मैंने ये आपको 2 मैंने ऑलरेडी बताए थे कि अगर 2 पोजीशन दी हुई है तो कहाँ क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है. तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर. ये आपको पता है मैं पॉलिश क्यों करती हूँ, बिकॉज पॉलिश नहीं करेंगे तो रेज बाहर निकल जाएंगे. हमें रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्शन नहीं देखना है. तो पहला पॉइंट हो गया PFC. ध्यान रखना अगर ये 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो FC की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर. क्यों, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि PF इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, CF. PF की जो वैल्यू होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं. तो CF, अगर CF की भी क्या हो जाएगी F, तो मतलब अगर मुझे PC देखना है तो क्या हो जाएगा PF प्लस CF. मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 2F. हमें पता है PC क्या होता है, रेडियस. ठीक है ना. तो F इक्वल्स टू R/2. तो ये भी आपको याद रखना है, रटना नहीं है. ओके. सो अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी है तो सारी रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी. ठीक है ना. इंफिनिटी है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी से बहुत दूर से हम जहाँ तक देख सकते हैं वो हमारे लिए इंफिनिटी हो गया. सन इज एट इंफिनिटी फॉर अस. ठीक है ना. तो इंफिनिटी पे रेज आई, कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस. बहुत इजी है मैम, फोकस से जाएगी. ठीक है ना. दूसरा वापस दूसरी रेज फोकस से जाएगी. तो ध्यान रखना हमें 2 रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है, और 2 इंसिडेंट का नहीं, 2 रिफ्लेक्टेड रेज का. तो यहाँ पे ये पॉइंट से ही इमेज बनेगी. ठीक है ना. ये बहुत अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए लग रहा होगा कि इमेज कैसे बन गई, बट जैसे जैसे टॉपिक हम बढ़ते जाएंगे आपको बहुत क्लैरिटी आती जाएगी. ठीक है ना. तो नेचर, नेक्स्ट हम जो लिखना है पड़ेगा हमें वो है नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज. चलो ओके, टेल मी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. देन इमेज कहाँ पे है, इमेज एट फोकस. सेकेंड पॉइंट, ओके, ऑब्जेक्ट इज हाईली इनलार्ज्ड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अगर हम इंफिनिटी पे कोई चीज देख रहे हैं, मतलब सन को देख रहे हैं, तो द पोजीशन ऑफ सन इज एट इंफिनिटी मीन्स द साइज ऑफ द सन इज वेरी लार्ज. साइज इज वेरी लार्ज. देन द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड. छोटा मोटा डिमिनिश्ड नहीं है भाई, कंपेयर करोगे तो बहुत ही छोटी इमेज बनेगी. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. आप अगर मैं आपको प्रैक्टिकल से भी समझाऊंगी कि कैसे कॉनकेव लेंस, हमें कॉनकेव मिरर लेना है, और कैंडल्स के थ्रू मैं ये समझाऊंगी कैसे इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है. अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर यहाँ पे रख दूं और इधर थोड़ी दूर पे कैंडल रख दूं तो हमारी जो इमेज होगी वो इस स्क्रीन पे आएगी. एग्जैक्टली स्क्रीन पे आएगी. ये अगर हमारी स्क्रीन हो गई, ये वॉल भी स्क्रीन हो सकती है. तो ये हम करके दिखाएंगे. ठीक है ना. तो जो इमेजेस स्क्रीन पे फॉर्म की जा सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज.
ठीक है। और MRI मैंने समझाया था ना, याद कर लो। MRI, R है तो I होगा और I है तो क्या होगा, इन्वर्टेड, करेक्ट। इमेज F पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। मैम ये रियल इन्वर्टेड कैसे पहचानेंगे, तो बहुत इजी है, जब रेस खुद ही मीट कर रही हो, व्हेन रेज आर एक्चुअली मीट द इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, but when the images when the rays are not appears to, these are just appear to meet, the rays are appears to meet means they will form the virtual image। जहां पे रेस खुद मिल रही हैं रियल इमेज, जहां पे रेस जबरदस्ती मिलाई जा रही हैं वर्चुअल इमेज। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम नेचर पढ़ेंगे, उससे पहले देखो मेरे पास तो ऑप्शन है, मुझे जो रफ करने का मन होगा मैं रफ कर लूंगी, बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप पूरा पूरा लिखोगे, पूरा पूरा रफ नहीं करना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या नेचर होगा इमेज का मैम, कैसे इमेज फॉर्म होगी, बहुत इजी है, अभी से सोचने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है ना। अभी आपका, मुझे भी पता है कि 10th में ऐसा कुछ नहीं था, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। तो पहले हमने बनाया कॉनकेव मिरर, फिर लाइन, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक तो इन्फिनिटी पे हो गई, दूसरा हो गया किसी नॉन डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि मैंने कैंडल बहुत ही दूर रख दी है, बहुत ही दूर, तो कैंडल का जो कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बन रही होगी बहुत छोटी बनेगी, जो भी वो रिफ्लेक्ट करके बनाएगा। पर अगर हमने कैंडल को नॉन डिस्टेंस पे रखा, मतलब हमें पता है कि हमने इसको 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो वो कुछ ना कुछ इमेज बनाएगा। अभी कैसी इमेज बनेगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बियॉन्ड ये होता है और बिहाइंड इधर होता है। तो मिरर के बियॉन्ड है मतलब इधर है, मिरर के बिहाइंड है मतलब मिरर के पीछे। मिरर के पीछे क्या होता है, इमेज बनती है कभी कभी, जैसे हम खड़े होते हैं ना मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो हमारी इमेज सामने दिखती है, तो मिरर के बिहाइंड हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट से पहली रे निकली और फोकस से गई, क्यों, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस आई तो फोकस से ही जाएगी, कोई दूसरा इसके पास रास्ता नहीं। आप ध्यान देना, अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर लेते हो तो ये भी 2 रहेगा, इसको 5 लिया तो ये भी 5 रहेगा, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन PF एंड CF विल बी सेम, ओके ना। एंड नेक्स्ट हम कहाँ से रख सकते हैं, हम दूसरा क्या कर सकते हैं, पोल पे डाल सकते हैं, तो पोल से निकल जाएगी। फोकस पे डालोगे पैरेलल टू एक्सिस जाएगी, या तीसरा हम कर सकते हैं सेंटर पे डाल सकते हैं इसको, तो सेंटर पे आई तो सेंटर से ही वापस, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ बन जाएगी इमेज, ठीक है। ये हो गया A B, दिस विल बी A डैश B डैश, ठीक है ना। अब देखो एरो ऊपर वाला ऐसा है और नीचे वाला कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है ना। सर का पैर दिखेगा, पैर का सर दिखेगा, ये होता है, ये हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल में आपको, ठीक है ना। चलो नेचर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा नेचर क्या होगा, रिया, प्रिया, कृति, कौन बताना चाहेगा। तो फर्स्ट नेचर, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। कहाँ फॉर्म हुई इमेज, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C and F। Next, it is diminished or highly diminished, obviously दिख रहा है diminished है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा ही इसका जो हाइट है वो कम है। थर्ड इज रियल है कि इन्वर्टेड है, क्या हम रेज को जबरदस्ती मिला रहे हैं, आर द रेज अपीयर्स टू मीट, आर दे एक्चुअली मीट, तो दे आर एक्चुअली मीटिंग, इट मीन्स दे फॉर्म रियल इमेज। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रियल है तो क्या होगा, MRI होगी, इन्वर्टेड होगा, क्लियर। So these are the fourth nature of the image, 4 points of the nature of the image। And next 2 केसेस हो गए आपके। थर्ड केस, इसको नोट डाउन कर लेना, हम थर्ड केस पे बढ़ते हैं। अब देखो हमने C के बहुत पीछे रख दिया,
इंफिनिटी पे रख दिया था एक बार तो ऑब्जेक्ट को, एक बार हमने, अब ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज सच में इंफिनिटी पे रख देते हैं, बट हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है उससे काफी दूर रखते हैं, ठीक है ना, उसी को हम इसके लिए इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक चींटी दूसरी चींटी को देखेगी तो उसके लिए वो इक्वल दिखाई देगा, बट अगर हमें देखेगी तो कहेगी अरे कितना बड़ा आदमी है, तो हमारे लिए वो क्या हो गई, बहुत छोटी, तो उस चींटी के लिए हम क्या हो गए, इंफिनिटी हो गए, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो मतलब यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहली रेस पैरेलल टू एक्सिस, कहाँ से जाएगी, फोकस से, इजी इजी, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ से जाएगी, अगर हम फोकस से जाएं तो पोल पे डालेंगे तो पोल से ही वापस, फोकस पे डाले तो पैरेलल टू एक्सिस, तो हम फोकस पे लेके जाते हैं, फोकस पे गई तो पैरेलल टू एक्सिस, कहाँ पे कट हुई, यहाँ पे कट हुई मैडम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, इस सी को मुझे थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये बन गई इमेज, ठीक है। अब अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगी, ठीक है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं यहाँ से बिकॉज ये हमारा पुराना था। पहला ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ है, इमेज एट सी, इजी। सेकेंड वन, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, साइज, तो देखो साइज जितना बड़ा ये इतना बड़ा ही ये, तो h नॉट जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज विल बी सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हाट कैन बी थर्ड पॉइंट, ऑब्वियसली रियल, एंड रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, ठीक है ना, इजी, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट तो पहला हमने कहाँ पढ़ा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पहले में ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, दूसरा हमने कहाँ पढ़ा, इमेज कहाँ बनी उसकी, फोकस पे। दूसरा पॉइंट, इमेज जो ऑब्जेक्ट था वो नॉन डिस्टेंस पे था, सी के बियॉन्ड था, तो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। थर्ड कहाँ पढ़ा हमने, ऑब्जेक्ट सी पे था। फोर्थ वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट देखो पहले सी के पीछे, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, ठीक है ना, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, कॉनकेव मिरर, ये हो गई पी एफ सी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में, पहली रेस पैरेलल टू एक्सिस, कहाँ से गई, फोकस से। दूसरी रेस फोकस, चाहे तो आप एफ पे डाल दो चाहे पी पे डाल दो, चलो दूसरा रूल भी ले लेते हैं, आप कहोगे कि तो एक रूल ही पढ़ाते हैं मैम, तो ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे कहाँ पे कट हुई, यहाँ कहीं पे, थोड़ा गड़बड़ हुआ, कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये बना दिया एफ, ये बना दिया सी, ये हो गया पी। पहली रेज आई, सॉरी कहाँ पे रखा इमेज ऑब्जेक्ट को, सी एंड एफ के बीच में, रेज गई कहाँ पे टकराई, पैरेलल टू एक्सिस गई, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। दूसरा कहाँ पे जा सकती है, पोल पे गई तो उतने ही एंगल पे वापस, I इक्वल्स टू आर, लगभग यहाँ पे टकरा रहे हैं, एक लाइन बना दी हमने ऑब्जेक्ट की, तो ये अगर ए बी तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्लियर है। नेचर बताओ जल्दी से, नेचर, पहला नेचर कहाँ कैसा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, भाई सी से पीछे बनी इमेज। सेकेंड पॉइंट, इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड है, भाई ऑब्जेक्ट की साइज से तो काफी बड़ी है, तो इनलार्ज्ड,
रियल है क्या? बिल्कुल रियल है। इन्वर्टेड है क्या? हाँ जी मैम, उल्टी है। इन्वर्टेड है, उल्टी नहीं मतलब इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्थ, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को रख देंगे एफ पे। ऑब्जेक्ट एट एफ। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पास ही तो आएगा। हम सब में चेक कर लेंगे भाई किसकी इमेज कहाँ बना रहे हैं, उसी की बेसिस पे तो हम इनका यूज डिसाइड करते हैं। कहाँ पे यूज होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का जो यूज होता है कॉनकेव मिरर का, अच्छा एक चीज तो रही गई, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये क्या करता है, सारी लाइट्स को जो भी आती है फोकस पे, जो भी आई फोकस पे, जो भी आई फोकस पे, जो भी आई फोकस पे, तो ये फोकस एक पॉइंट बना जाता है जहाँ पे सारी लाइट्स कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। डेंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं ना, जब हमें हमारे टीथ की स्टडी उनको करनी होती है, कहीं पे कुछ लगा तो नहीं है, तो वो उस मिरर का यूज करते हैं, वो सारी लाइट्स वगैरह को कन्वर्ज कर देता है। और दूसरी साइड है हमारे पास क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट पड़ती है और क्या भेज देता है दूसरी साइड, पड़ी दूसरी साइड, तो हम इनको जबरदस्ती क्या कराते हैं? पीछे मीट कराते हैं। तो ये लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, भेज दे रहा है वापस, तो डाइवर्जिंग मिरर। अंडरस्टैंड? जहां पे लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाए कन्वर्जिंग मिरर, जहां पे लाइट दूसरी तरफ चली जाए डाइवर्जिंग मिरर। आपको पता है इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है जो बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स होती हैं, वहां पे बड़ा सा आपने देखा होगा उभरा हुआ क्या रहता है? मिरर रहता है ना। वो क्या काम करता है? जो साइड मिरर्स होते हैं कार्स में लगे होते हैं, बाइक में लगे होते हैं, वो यही तो काम करते हैं कि सारे जो लाइट आती है उसको डाइवर्ज कर देते हैं और उसकी इमेज जो है फोकस पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी बात पे जरा बताओगे कि जो हम पार्लर जाते हैं वहां पे जो मिरर यूज किया जाता है, शेविंग मिरर, हम नहीं जाते, मतलब मेल जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? पार्लर। तो वो मिरर कौन सा यूज करते हैं? क्या वो सारी लाइट को एक जगह कर देता है या लाइट को फैला देता है? अब मुझे बताओ कमेंट करके। तो अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया एफ पे। एफ पे गया, पहला कहाँ पे? फोकस, पैरेलल टू एक्सिस जाएगी, फोकस से वापस। दूसरा क्या कर सकते हैं? देखो सेंटर से जा ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट पीछे से थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगा, आगे ही जाएगी रेस। तो दूसरा हम फोकस पे डाल सकते हैं, फोकस पे गया तो फोकस से वापस उतने ही एंगल पे आई आर। अब ध्यान देना, क्या ये रेस कभी मीट करेंगी आपस में? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कभी ये मीट कर सकती हैं? ऐसा कोई चांस है? चेक करो, चलो। क्या ये कभी मीट कर सकती हैं? बताइए। नहीं कर सकती हैं। पैरेलल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी मीट नहीं करेंगी, चाहे आप इनको पीछे कितना लेकर चले जाओ और इधर कितना लेकर चले आओ। तो जो लाइंस कभी मीट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो ये कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगी, और जो करेगी वो हम मान लेते हैं कहाँ करेगी? इन्फिनिटी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जब रेस आती है इन्फिनिटी वाले से तो वो पैरेलल होती हैं। तो जब इमेज वाली रेस कहीं से आ रही है मतलब वो पैरेलल है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे है? इन्फिनिटी में बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बनी? इन्फिनिटी। सेकेंड कैसी है? इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज है। बिल्कुल, जब इन्फिनिटी पे है तो हम क्या मान लेते हैं? हाईली इनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट, रियल है वर्चुअल? बताना जरा। क्या हमें अपीयर्स टू मीट है? नहीं, कहीं नहीं मिलती दिख रही, तो क्या हो जाएगा? रियल। और रियल है तो साथ में क्या आता है? इन्वर्टेड। क्या आता है? इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये हो गया आपका एफ पे जब होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखते हैं हम? एफ और पी के बीच में। उसके बाद ये आखिरी रूल होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कितने सारे रूल पढ़ने पड़ते हैं। वो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, इजी होता चला जाएगा। और नहीं करोगे तो देखने से तो केवल होगा नहीं कुछ, ठीक है ना। तो जो हमारा 6th पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट बिटवीन
F एंड P। अब होगा असली काम, ठीक है। बीचों बीच से रखी लाइन, एक बार गलत हो जाए ना सही करना पड़ता है, गलत हो जाए सही कर देंगे। F C। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, तो पहली लाइन पैरेलल टू एक्सिस गई, पैरेलल टू एक्सिस जाएगी तो फोकस से बाहर। दूसरी क्या कर सकते हैं, अब देखो ना, तो फोकस से लाइट इसकी जा सकती है ना, सी से जा सकती है, और तीसरा क्या बचता है, पैरेलल टू एक्सिस हमने रख ही दी है। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कहाँ से, पोल पे, पोल से गई तो पोल से ही वापस, क्योंकि ये एंगल सेम होना चाहिए आई आर। तो ये रेस कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब अगर मैं इनको पीछे ड्रैग करूं तो क्या होंगी, कहीं ना कहीं मीट कर सकती हैं, तो करते हैं, वही तो हमारा काम है। इनको हमने किया ड्रैग, तो यहाँ पे मिल रही है, एक लाइन खींच दी, ठीक है ना, ये बन गई इमेज। तो देखो रेस कैसी हैं, पैरेलल तो नहीं थी, जब पैरेलल तो नहीं थी तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने से इमेज, मिरर के सामने अगर नहीं भी है, सपोज मिरर रखा है और कोई चीज मिरर में किसी चीज की रेज अंदर टकरा रही है, तो वो हमको ऑब्जेक्ट मिरर पे दिखाई देता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी गेट से हम देख लेते हैं कि मम्मी आ रही है, हमारी तरफ की नहीं आ रही है, क्योंकि मिरर में दिख जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह होता है, एक्चुअली मम्मी मिरर के सामने नहीं होती है, बट वो दिख जाती है। तो क्यों दिख जाती है, क्योंकि वहां से लाइट निकलती है, जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि लाइट वहां से आ रही है। तो लाइट को हमें ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही, मतलब हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट वहां पे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो हम इसको ड्रैग करेंगे, पीछे मिल जाएंगे। हमने पैरेलल वाले में क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि पैरेलल वाले को हम कितना भी ड्रैग करेंगे वो मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है ना। तो इमेज का नेचर, इमेज पहली तो बताओ कहाँ बनी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, देखो पीछे। सेकेंड पॉइंट, हाईली इनलार्ज या इनलार्ज्ड, तो इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड क्यों नहीं, क्योंकि जब इंफिनिटी पे रहेगी तभी हम बोलेंगे हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रियल और वर्चुअल। ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये रेज, दीज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दीज रेज आर अपीयर्स टू मीट, तो हम इनको मीट करा देते हैं, तो वर्चुअल बन गए। और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। इमेज कैसी है, सीधी, अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा दिख रहा है, ए बी, ए डैश बी डैश। यहाँ से आपके कॉन्केव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो होते हैं समाप्त। और डरो नहीं, कॉन्वेक्स कितने नहीं पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स केवल 2 ही पढ़ने हैं, तो वो मैं आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी, ताकि आपको बार बार इमेज फॉर्मेशन के लिए परेशान ना होना पड़े, अलग अलग ना भागना पड़े, ठीक है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल समझ लो, रूल्स। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल वही कहता है जो कॉन्केव का कहता है, ये हो गया कॉन्केव मिरर। तो पहला रूल है कि अगर पैरेलल टू एक्सिस आई, अब देखो कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस इधर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर तो फोकस भी इधर, इधर हो गया एफ और ये बीचों बीच में सी, एफ सी, ठीक है ना। इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अगर पैरेलल टू एक्सिस आई तो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे से हमें लगेगा अपीयर्स टू मीट हो रही है, कहीं ना कहीं से हम इन्हें मिलाते हैं, तो हम पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं मीट कर रही होंगी। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर रेस कहाँ पे है, किसी नोन डिस्टेंस पे है, बियॉन्ड द मिरर है, ये कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से आता है तो पैरेलल टू एक्सिस, या फिर केवल रूल के बारे में भी आप समझो। अगर पैरेलल टू एक्सिस आई, पैरेलल टू एक्सिस,
तो कहाँ से जाएगी, फोकस। रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि पहला तो था पैरेलल टू एक्सिस, दूसरा वाला क्या था कि अगर पोल पे पड़ी तो उतने ही एंगल से पोल से वापस। ठीक है, ये है आपका सेकेंड रूल। तो अगर पोल पे पड़ी रेस, अगर रेस पोल पे पड़ी तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है ना। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, ये है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। बताओ क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है भाई। फोकस तो इसका होता है इधर साइड, तो फोकस पे तो आने का सवाल ही नहीं। मान लो कोई रेस कैसी पड़ रही है, कोई रेस पड़ ही ऐसे रही है, तो वो सेंटर पे आएगी, तो सेंटर से ही वापस। ठीक है ना, 3 रूल हो गए। सेंटर पे पड़ी तो सेंटर से वापस। पहला पैरेलल टू एक्सिस आई तो एफ से गई, दूसरा अगर पोल पे पड़ी तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। अगर थर्ड आपका रूल क्या कहता है कि अगर सी पे पड़ रही है तो सी से ही वापस। इसमें फोर्थ रूल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस साइड से इमेज कभी ऑब्जेक्ट की लाइट कभी आएगी नहीं, फोकस से आएगी, पैरेलल टू एक्सिस जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 ही रूल हैं। अब उन तीनों रूल से इमेज क्या फॉर्म हो रही है हम वो चेक कर लेते हैं। हमारे इमेज फॉर्मेशन के यहाँ पे 2 ही पोजीशंस हो सकती हैं। पहला पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया P, क्योंकि बाकी सब इनका तो होता है इधर, ये होता है F, ये होगा C। अगर इंफिनिटी पे है तो किधर कैसे आएगी, पैरेलल टू एक्सिस ही आएगी सारी रेस। इधर आई तो इधर भाग गई, इधर आई तो इधर भाग गई। अब इनको आप पीछे ले जाओ, मीट कराओ। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज एट एफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या रेस जबरदस्ती मिल, पहले तो हाँ हाईली डिमिनिश्ड हुई है, हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट, रियल है या वर्चुअल, जरा देख के बताओ। रेस को आपने खुद मीट करवाया है या अपने आप से करेंगे, वर्चुअल, जबरदस्ती कराया तो वर्चुअल। एंड लास्ट वन इरेक्ट, जहां पे वी होगा वहां पे ई होगा। मैंने एक हिंट दिया था, ईवीएम से याद रखना, ई के साथ वी आता है, ठीक है ना, वी के साथ ई आता है। दूसरा नेचर, ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस। देखो 2 ही केस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका P और F, जो F और C होता है वो सारा किधर होता है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए केवल 2 ही रूल होते हैं और राइट साइड का कोई रूल ही नहीं है। ठीक है ना, ये हो गई नोन डिस्टेंस, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ कहीं पे। ये हो गया P, F, ये हो गया C। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलल टू एक्सिस आई, किधर से जाएगी, ये यहाँ पर भी पीछे जाएगी। नेक्स्ट पोल पे ले जाओ तो पोल से वापस, पोल पे ले गए, पोल पे ले गए तो पोल से ही वापस। अब इस पोल को हमें पीछे बढ़ाना है, तो यहाँ पे है फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया A B, तो हो जाएगा A डैश B डैश। नेचर बता दो जल्दी से। पहला नेचर कैसा है, ये कहाँ पे बनी, बिटवीन इमेज, इमेज का नेचर बिटवीन P एंड F। सेकेंड डिमिनिश्ड, भाई ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही बनेगी, डिमिनिश्ड। थर्ड वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। आपको दिख भी रहा है इमेज कैसी है, सीधी है। तो ये सारी तो हो गई थ्योरी वाली बातें जो हम कहाँ से कर रहे थे, जो हम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस इज गिवन। बट प्रैक्टिकली हम अगर कोई चीज़ को देखेंगे ना तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मैं प्रैक्टिकल जल्दी इसका अरेंज करने वाली हूँ। 2 अप्रैल को मैंने प्लान किया है कि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स को लेकर
जो भी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, ठीक है ना। चलो अभी साइन कन्वेक्शन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे भी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 5 लेक्चर्स में सब कुछ कवर करूंगी, बट इफ नीडेड आई विल अपलोड अनदर लेक्चर्स आल्सो रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।